वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। I welcome everyone who are in temple as well as who are online. Today on 30th of July 2025, we are meeting again to discuss and study the principles and guideline given to us by Yogeshwar Krishna, Bhagwan Krishna, through Srimad Bhagavad Gita. We are going to study further on the 4th chapter, 10th sloka. What is there in 4th chapter? We always listen. Gita mein kya likha hai? Anybody who has not read also, you ask him, what is written in Gita? People will say, sab chhod do. Rag chhod do, bhay chhod do, moh chhod do, krodh chhod do. ऐसा ही कहा गया है, सब छोड़ दो. So we are talking on this sloka, what is the real meaning of it? So last time we were talking and discussing about the word rag, bhaya and krodha, because this sloka is containing these three words. And we were trying to understand whether it is possible and what exactly the meaning being told in this sloka. So I will first chant the sloka. After chanting we will look at it. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता. And the literal meaning, the verbatim, shabdarth, what is the meaning? That being free from attachment, fear and anger, vita, raga, bhaya, krodha. Rag, bhaya and krodha. Vita means which is gone, whose rag, bhaya and krodha is gone. And manmaya, mamupasitaha. Manmaya, matmaya, completely absorbed in me, and mam upasritaha, and taking refuge in me. That person, bahavo jnana tapasa, bahavo, many people, knowledge, jnana, tapasa, by the fire of knowledge. So, राग भय और क्रोध से रहित मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं. पूता मद्भाव मागता, have attained after purification in the fire of knowledge. That is what is written here. So last time we were looking at rag, bhay and krodh. Rag, pyar, moh, whether we should have it or not. That was the question, and we were looking at it. And we saw that rag is necessary. It is necessary to run the world. दुनिया को चलाने के लिए जरूरी है. प्यार जरूरी है. प्यार के बगैर दुनिया चलेगी नहीं. राग के बगैर, मोह के बगैर दुनिया चलेगी नहीं. A mother has to care about the children, newly born, without any expectation. नहीं तो world will not grow. We feel happy while being loved, and compassionate society will be a happy place to live. So rag is necessary. If rag is not there, then there is a problem. Similarly, bhaya, we were looking at the bhaya part. Fear. Even in the minutest level, fear is required. A toddler who is not knowing anything about the world, unless the toddler knows about the fear of getting burnt from hot objects, fear of falling down from heights, fear of sharp things,
getting pinched and poked, getting electrocuted. All these fears are necessary to protect our life. Even to the minutest material level, fear is necessary. भय की जरूरत है. Going forward in the school, homework नहीं किया, टीचर मारेंगे, fear, punishment, necessary to grow. So fear is necessary to survive and fear is necessary to grow. जरूरी है. भय is necessary. भय about doing wrong and incorrect things. चोरी करना, चोरी करोगे जेल में जाओगे, मार खाओगे, डंडा खाओगे. Strict rules by government. Chanakya is told, the king or any governance is ruling only by the fear. जब तक fear नहीं है, जब तक राज्य या शासन काम नहीं कर सकता. शासन को काम करने के लिए भय की जरूरत है, भय की आवश्यकता है. Even today we are seeing शासन मतलब क्या? It's not only the kingdoms or countries, even at home. Why today we see that the younger generation is more careless, is more little more disobedient than the earlier generation? Why? The fear is gone. बाप का धाक चला गया, पिताजी की धाक चली गई. गलत करेंगे पिताजी पनिश करेंगे. व्हाट इज नाउ? पिताजी पनिश करने के लिए आएंगे भी, 911 दबा दो. फियर चला गया, पिताजी की धाक चली गई. वीक पेरेंटल इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू इन टुडेज वर्ल्ड. वीक पेरेंटल क्या है? बच्चे को कह नहीं सकते, बच्चे को कह नहीं सकते. फियर. सो फियर इज एवरीवेयर. शासन करने के लिए फियर जरूरी है. द मोर फ्रीडम एंड लिबरल सोसाइटी नीड्स मोर स्ट्रिक्टर रूल्स. Needs more stricter rules. The more the freedom, the more stricter rules. If it is not there, the society will go uncontrolled. Fear जरूरी है. If you get unemployment benefit, then you should not do the begging. भिखारी नहीं चलेंगे. Unemployment benefit ले लो, मेहनत करो, भीख नहीं मांग सकते. Otherwise, people will misuse it. We see it in this part of the world. People are misusing. Unemployment benefits are taken by the people who do not need it. They are healthy, they are able to work, but they will take all those benefits. Why? There is no fear of consequences. Fear is necessary. Then the Krodh is necessary. When the culture is getting demolished, a person should become angry. For disrespect of elders, women and children. If I don't become angry against those bad things, against those injustice, then it is no use. Anger should be necessary. You must be unhappy, must be angry. Yeah. If I feel very sleepy, then I should be angry on myself when the exam time comes. When there are exams, I should be reading rather than becoming a lazy person. I should be angry on myself. So it is not only anger outside, it is anger inside too. Vices, students studying in exam, obese person, eating and just sitting couch potatoes. They should be angry on themselves for changing that habit. Unless there is an anger, displeasement, they will not change. They will not change. So anger is necessary. We see that. Injustice in the society. We need anger. So important is where, when and how to use these qualities. That is the deciding factor. So here God is telling Vita Raga Bhaya Krodha, one whose Rag, Bhaya and Krodh is gone.
but we see that it is necessary. So if it is gone, how it is gone? And if it is gone, then what will happen? क्या राग, भय और क्रोध के बगैर दुनिया जी सकती है? नहीं. We saw the examples. Then why God is telling here वीतराग भय क्रोध? हाँ, क्यों जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो डिसाइडिंग फैक्टर है. कहां जाना चाहिए, कहां होना चाहिए, वेयर इट शुड बी, वेयर इट शुड नॉट. When these things are impacting the regular functionality and duties by losing control on oneself, then it's supposed to go. We should be having a control over it. It should not control us. These vices within the control of the brain is the key. And how do we get that control? We get that control through tapa. And that is why the second stanza, in the first stanza, Vitaraga Bhaya Krodha, how that will go? Manmaya Mama Upasrita. It will not go, but it will stay there in a proper way of usage. Manmaya Mama Upasrita. Taking a refuge. And how? Bahavo Jnana Tapasa. Here the word tapa is very important. Purified by tapa. What is the purification? What purification God is telling here? Purification means able to understand where to use and where not to use. कहाँ उपयोग में होना चाहिए और कहाँ नहीं, वो तपा होना चाहिए. You should know how to use it and where to use it. Simple example is knife. You should know where to use the knife. For cutting vegetables and feeding people, or showing to someone and snatching their wallet. Jnana tapasa, and that will need tapa, that will need lot of effort and understanding to be developed. And how that understanding can be developed, why I should think in that way, चोरी क्यों नहीं करनी. See, that is one of the biggest thing. Because the person who is capable of escaping from the consequences will continue to do it. And another person who is able to hide it will also continue to do it. जो छुपा सकता है और जो कॉन्सिक्वेंसेस में से बच सकता है वो करेगा. क्यों नहीं करेगा? अगर मैं कुछ गलत करता हूं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में से मैं बच सकता हूं, आई विल नॉट बी पनिश्ड इवन इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग बिकॉज ऑफ राग, भय और क्रोध. इफ आई एम डूइंग इट, देन व्हाट विल सेव मी? ज्ञान होने के बाद भी, तप, ज्ञान तपसा के बाद भी, चोर को पूछो चोरी करनी चाहिए, वो बोलेगा नहीं करनी चाहिए. ही विल से नहीं, स्टीलिंग इज रॉन्ग, मगर वो चोरी करेगा. क्यों? मैं बच सकता हूं. सो विथ द ज्ञान, द नॉलेज ऑफ वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज, बट स्टिल दे विल बी यूजिंग इट इन ए रॉन्ग वे. बट द ओनली की इज ऊता मद्भावमागता. ऊता मद्भावमागता. Through the fire of knowledge, we will develop the understanding. But until we purify with the divine love, मेरी माँ ने कहा है कि चोरी मत करना. मेरी माँ ने कहा है. टीचर भी कहते हैं स्कूल में चोरी मत करना. टीचर विल ऑल्सो से स्टीलिंग इज रॉन्ग. फिर भी करते हैं ना चोरी, करते हैं ना. मगर मेरी माँ ने कहा है और मुझे मेरी माँ के ऊपर बहुत प्यार है, इसलिए मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. प्यार, सिर्फ नॉलेज नहीं चलेगा, क्योंकि नॉलेज वाला बंदा भी गलती करेगा. कैपेबल है, गलती करेगा. मगर प्यार है तो नहीं करेगा. कैपेबल है या नहीं है, इसलिए पूता मद्भावमागता. मद्भावमागता.
ये जरूरी है, प्यार जरूरी है। किसका प्यार? हमें बनाने वाले का प्यार, भगवान का प्यार। पूता पूता प्यूरिफाइड मद्भावम आगता, दैट इज नेसेसरी। वीतराग भय क्रोध कैसे जाएगा? गलत तरीके से यूज करने में से जाएगा। कैसे समझेंगे? ज्ञान तपसा। और क्यों नहीं करेंगे? मद्भावम आगता, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक। सो फर्स्ट स्टेप हियर, पूता मद्भावम आगता, उसका भाव जानेंगे, टू अंडरस्टैंड द डिवाइन लव, divine love of the God. So here there is a very important word here is there. Bahavo jnana tapasa and then puta vamabhata. Then puta madbhavamagata. Bahavo jnana tapasa. Here God has clearly told that the jnana is a first step and then bhava is a second step. Jnana is the first step. Bahavo jnana tapasa. To understand the God is more important as a first step. That is why Srimad Bhagavad Gita is in 3 steps. Understanding of importance of karma through Sankhya Yoga and Karma Yoga. Purification of mind and intellect through the Jnana. That is the chapter which we are learning. And then submerging oneself in the pure love of God, which is Bhakti. जब तक वो नहीं समझेंगे, खाली भक्ति में ही सीधे जंप करेंगे, डायरेक्टली गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, नॉट गोइंग थ्रू जूनियर केजी, सीनियर केजी, मिडिल स्कूल. इफ यू डोंट डू दैट एंड वी डायरेक्टली जंप इन यूनिवर्सिटी, वी विल नॉट बी एबल टू लर्न इट. भाव समझेंगे ही नहीं. अवर ओन एक्सपीरियंस, व्हेन डू वी लव अवर मदर द मोस्ट? मां को सबसे ज्यादा कब हम प्यार करते हैं? सबसे ज्यादा कब हम करते हैं? जब हम बूढ़े हो जाते हैं. When you grow older, you remember and understand your mother more and more. The maximum love for the mother is created when you are old, when you become mother or father. जब ही उनका प्यार समझता है, ऐसे नहीं समझते. बचपन में तो लालच से ही, माँ कैसी है, लड्डू देती है इसलिए माँ अच्छी है. अगर माँ चाटे देगी, माँ बुरी है. Because we don't understand mother. When we grow older, then we understand, and then the love is coming. So how does it come? Through the jnana, through the knowledge and understanding about the mother and what she has done for me. In the same way, to understand the God and His love, the first step is jnana. This is extremely important step which most of the people forget or do not attain. ज्ञान लेते ही नहीं है. इतना कौन पढ़ेगा? गीता इतना कौन पढ़ेगा? इतना पढ़ने के लिए टाइम किसको है? इतना कौन झंझट करके समझेंगे? उससे अच्छा है, नहीं करना चाहिए, मैं ना नहीं बोलता, उससे अच्छा है 4 दिन भजन करो. वेरी इजी, वेरी इजी. ज्ञान से समझने के लिए तो दिमाग चलाना पड़ेगा. इतना दिमाग चलाने के लिए टाइम भी नहीं है और अकल भी नहीं है. हाथ जोड़ के बैठो, माता जी को ऐसे प्रणाम करो, हाँ हम भक्त हो गए, सीधे भक्त. जूनियर केजी, सीनियर केजी कुछ नहीं, सीधे भक्त. तो होगा ही नहीं. क्या नहीं होगा? इम्पैक्ट. वी नो, वी हैव सीन पीपल tens and so many years and years they go to the temple. What is the impact on yourself? Have you changed? तुम्हारे अंदर से कम हुआ ये वीतराग भय क्रोध है ना भाई. राग भय क्रोध कम हुआ? मंदिर गए, 40 साल तक गए मंदिर, कम हुआ क्या? मेरे अंदर से भय कम हुआ? अरे मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी कोठी का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा? अभी तक भय है. 30 साल से मंदिर जाते हैं फिर भी भय है. वही माता रानी को पैर पड़ते हैं जो शेर के ऊपर बैठी है, शेरों वाली, उसकी पूजा करते हैं फिर भी भय है. क्यों? क्योंकि समझे ही नहीं है. ज्ञान से समझना ये पहला स्टेप है. दैट इज वाई गीता इज इंसिस्टिंग ऑन द ज्ञान फर्स्ट. ज्ञान कर्म संन्यास योगो नामा. कहीं भी भक्ति नहीं है यहां, कहीं भी नहीं बोलते मेरे पैर पड़ो, ये करो. गीता इज नॉट टेलिंग दैट. और इसीलिए गीता शास्त्र है. भाई गीता क्यों? गीता क्यों?
अदरवाइज पीपल विल ट्रांसलेट दिस वीत राग भय क्रोध। भगवान बोलते हैं राग भय और क्रोध छोड़ दो, नहीं छूटेंगे। वी सो नहीं निकलेगा, नहीं निकल सकता। वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स नहीं हो सकता और निकलना भी नहीं चाहिए। इट शुड नॉट। मुझे प्यार होना चाहिए, पहले शायद मेरे खुद के ऊपर हो, फिर बीबी बच्चे के ऊपर हो, फिर समाज के ऊपर प्यार होना चाहिए। बड़े बड़े संत हो गए, संतों ने क्या किया? समाज के ऊपर प्यार किया ना। दे लव्ड द सोसाइटी एंड दे वर्क फॉर द सोसाइटी। तो लव तो होना चाहिए। यहां कहते हैं वीतराग भय क्रोध, क्या कहते हैं? समझना पड़ेगा। ज्ञान तपसा बहुवो ज्ञान तपसा, ये समझना पड़ेगा। वीतराग भय क्रोध भय। नाउ वी विल गो ए लिटिल डीपर। इट इज चैलेंजिंग बट वी मस्ट अंडरस्टैंड। आज नहीं तो कल समझेंगे, उसमें क्या है। What is राग भय एंड क्रोध? What is the other way to look at it? उसको दूसरे शब्दों में कैसे समझेंगे? राग भय क्रोध छोड़ दो। हाँ, बोलते हैं माया छोड़ दो, मोह छोड़ दो, छूटती नहीं है। हाँ, नहीं छूटेगी। कैसे छूटेगी? ऐसे भी जरूरी है। So let us understand the word rag bhaya and krodha from the other perspective, second perspective। वही चीज को अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। राग इज क्रिएटेड ऑफ व्हाट? राग किसके लिए होता है? राग मीन्स वी वांट मोर, परमानेंटली एंड अनलिमिटेड। ये तीन चीजें होती है, उसके राग होता है। क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। आई गॉट 1 स्मॉल हाउस, आई नीड ए बिग मैंशन। आई गॉट 1 मिलियन इन माई अकाउंट, आई नीड 20 मिलियन। राग, ज्यादा चाहिए। मोर, परमानेंटली, हमेशा रहना चाहिए। कोई भी आदमी मंदिर में जाता है, कहीं भी जाता है, मुझे भगवान दुखी कर देना, ऐसा कभी नहीं मांगता। मुझे और सुख दे दो, है ना, मुझे और सुख दे दो। औरों को दिला दे, मुझे भी दिला दो, और भी दे दो, ज्यादा दे दो, और परमानेंटली दे दो। परमानेंट होना चाहिए, कभी कम नहीं होना चाहिए। कभी कम नहीं होना चाहिए, हमेशा बढ़ना चाहिए। मेरी जवानी हमेशा रहनी चाहिए, मैं कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। परमानेंटली होना चाहिए। राग, सो राग इज फॉर द प्रेजेंट। राग का मतलब होता है फॉर प्रेजेंट, वर्तमान काल। राग इज फॉर प्रेजेंट। रिपीटेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, हैप्पी एक्सपीरियंसेस, ये राग है। रिपीटेशन ऑफ हैप्पी एक्सपीरियंसेस। क्रूज में गए, ट्रैवल में गए, पिक्चर देखते हैं और भी देखते हैं। हम वहां क्रूज में गए थे, फोटो निकाले थे, फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। क्यों? गिव्स यू हैप्पीनेस। ऑनरशिप, हाउस, कार, मनी, अर्न थिंग्स और प्राइड इन हार्डवर्क, ये सब प्रेजेंट है। स्पोर्ट्स मेडल्स, मिस इंडिया का टाइटल, मिस वर्ल्ड का टाइटल, दिस आर ऑल प्रेजेंट एंड इट शुड नॉट गो। वो चला नहीं जाना चाहिए और रहना चाहिए। ये राग है। वर्तमान काल में, in the present time, whatever experience and assets or belongings we have should continue. That is rag. उसके ऊपर बहुत प्यार हो जाता है। And the fear is for future. भय किसके लिए होता है? हमेशा भविष्य के लिए होता है। भय हमेशा भविष्य का होता है। मेरा ये चला जाएगा तो, धंधा नहीं चलेगा तो, एग्जाम में पास नहीं होऊंगा तो, वीजा नहीं मिलेगा तो, सिटीजन कब मिलेगी तो, अच्छी लड़की मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो, पेरेंट्स बीमार हो जाएंगे तो, अनसेफ सिचुएशन इन फ्यूचर। भय उसके लिए होता है। भय कभी प्रेजेंट के लिए नहीं होता है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है। हमेशा भविष्य के लिए भय होता है। बीमार हो जाऊंगा, एजिंग, वीकनेस, लॉस ऑफ ब्यूटी। 16 साल की, 18 साल की लड़की को भय नहीं होता है। 35 साल की लड़की को भय होता है, अरे मेरी ब्यूटी चली गई तो। फ्यूचर, भय फ्यूचर के लिए होता है। इनकन्वीनियंस इन फ्यूचर इज कॉजिंग द फियर। अनहैप्पीनेस क्रिएटेड ड्यू टू अननोन फ्यूचर इज भय।
उसके लिए भय होता है। भय फॉर लाइफ, भय फॉर ब्रेड, रोटी नहीं मिलेगी तो, भय फॉर रिलेटिव्स, प्रियजन वियोग का भय, हमारे जो प्रियजन है उनका वियोग हो जाएगा, वो भय, वो भय। ईगो, अहम और सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी तो वो भय है। चोरी करने का भय नहीं है, चोरी करके पकड़ा जाऊंगा तो उसका भय है, उसका भय। सो भय इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर, भय इज फॉर द फ्यूचर, एंड दैट फियर डज नॉट अलाउ अस टू एंजॉय द प्रेजेंट। वो जो भय है वो हमें हमारा जो अभी प्रेजेंट है उसको एंजॉय नहीं करने देता। स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है। एक बड़ा सा गांव था, देयर वाज अ विलेज, देयर वाज अ बिग सेट इन इट। बड़ा, बिग बिजनेसमैन वाज देयर, लॉट ऑफ मनी, बड़ी सी कोठी, बिग मेंशन, लॉट ऑफ मनी, नाइस फर्नीचर, वेरी ब्यूटीफुल वाइफ, अच्छा सा बेडरूम हैज गॉट ए नाइस काउच विथ ए वेरी सॉफ्ट एंड वेरी हाई क्वालिटी मैट्रेस, ऐसा घर है। फिर वन डे वन डेकोइट, Gabbar Singh, he will come and he will put a note on the door of this mansion. वो सेठ की हवेली के दरवाजे के ऊपर एक चिट्ठी लगा देता है, आज रात को 12 बजे आके तुम्हें लूट के मार के जाऊंगा। ऐसा लगा देता है चिट्ठी। सेठ आते हैं, सेठ comes in the evening, he is reading, oh my God, Gabbar Singh is going to come today. This is old time for Gabbar Singh. He is going to come tonight and he is going to kill me. Even though the Seth is eating the best quality food, even though he has got the best bed to sleep on, he will be sleepless. He will be so worried. गब्बर सिंह आएगा मार देगा, गब्बर सिंह आएगा मार देगा, गब्बर सिंह आएगा मार देगा। फ्यूचर, उसको नींद नहीं आती। गब्बर सिंह आएगा नहीं आएगा सेपरेट मैटर है। ही कैनॉट एंजॉय हिज प्रेजेंट। व्हाई? बिकॉज ही इज वरीड अबाउट द फ्यूचर। ही इज वरीड अबाउट द फ्यूचर। ये हो जाएगा तो, वो हो जाएगा तो, मेरे पैसे कम हो जाएंगे तो, सो आई विल डू एनीथिंग रॉन्ग टुडे। मेरा क्या होगा, सोसाइटी का क्या होगा, कोई चिंता नहीं। गलत काम करो, क्यों? फ्यूचर का भय, और बिगाड़, और इकट्ठा, इतने पैसे और भी कम है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। क्योंकि फ्यूचर का भय है, फ्यूचर का भय। सो भय इज फॉर द फ्यूचर। द फियर, द कॉम्प्लेक्स, द होल मैकेनिज्म ऑफ फियर इज फॉर द फ्यूचर टेंस। द फ्यूचर, भविष्य के लिए भय होता है, वर्तमान के लिए राग होता है। मेरा बच्चा, मेरा ये, वो राग है। और क्रोध, क्रोध इज ऑलवेज फॉर द पास्ट। क्रोध हमेशा भूतकाल के लिए होता है। एंगर, इट इज ऑलवेज फॉर द पास्ट और नियर पास्ट, बट इट इज ऑलवेज फॉर द पास्ट। हमेशा गुस्सा भूतकाल के लिए होता है। मैं छोटा था, मुझे ये नहीं करने दिया। एंगर, इनजस्टिस इन द पास्ट, गेटिंग लेस फूड, मुझे खाना नहीं देते थे। बैड एक्सपीरियंसेस इन पास्ट, मैं छोटा था, स्कूल में था। यू आस्क ए वेरी रिच मैन, ही इज ए वेरी रिच मैन, आस्क हिम व्हाट इज योर स्कूल टाइम एक्सपीरियंस, he will always be angry about a injustice which happened to him. मैं स्कूल में था, जूनियर केजी में, I was in junior KG, and one boy came and he took my pencil. I was very angry. Today he is a millionaire, but he still remembers that experience of old school time and he is unhappy. गुस्सा हो जाता है, ऐसा ले, उसने मेरी पेंसिल ले ली थी, he snatched my pencil. एंगर, क्रोध आ जाता है फॉर पास्ट।
लॉस ऑफ कंट्रोल एंड लव इन फैमिली मेंबर्स. हाँ, बीवी मानती नहीं है. आई ऑलवेज जोक ऑन दैट. देयर इज अ नाइस लिटिल सॉन्ग इन हिंदी मूवीज. In the point of क्रोध, I always comment on that. दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए. What is the heart? You take my life. दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए. बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए. मेरा कहा मानते नहीं है. मेरा कहा मानते नहीं. एंगर. सो इवन फॉर बिजनेस, अरे मेरी इतनी अच्छी ये थी मगर मुझे बिजनेस करने नहीं दिया, मुझे ये नहीं हुआ, वो. एवरीथिंग द एंगर इज रिलेटेड टू पास्ट. इनजस्टिस. सो एंगर इज फॉर द पास्ट, राग इज फॉर द प्रेजेंट, एंड द भय इज फॉर द फ्यूचर. सो व्हेन द गॉड सेज हियर वीत राग भय क्रोध, it is actually representing the way we think and feel for the past, for the present, and for the future. The way we think and feel is Raga, Bhaya, and Krodha. Unless we get rid of these feelings in our mind, we will never be happy. हम खुश नहीं रहेंगे. पुरानी यादों को याद करते हुए हम दुखी रहेंगे, हम एंग्री रहेंगे, और भविष्य में आने वाली अननोन सिचुएशंस के लिए हम हमेशा पीड़ित रहेंगे, भयभीत रहेंगे. तो हम एंजॉय नहीं कर सकेंगे. वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय अवर लाइफ. वी विल नेवर बी हैप्पी वॉट एवर एंड हाउ मच वी आर ओनिंग. हमें कितना भी हमारे पास है, हम एंजॉय नहीं कर सकेंगे. सो दैट इज वाई वीत राग भय क्रोध. दैट इज वाई ये राग भय और क्रोध निकलने का मतलब क्या है, ये जो फीलिंग होती है हमारी वो चली जानी चाहिए. अनलेस वी गेट रीड ऑफ दिस फीलिंग्स इन अवर माइंड, वी विल नॉट बी हैप्पी. आवर एक्शंस विल बी इंपैक्टेड, हैंस इट विल रिजल्ट इनटू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. जुआ खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग, a habit of getting free will lead to unhappiness. We have seen most people who have won the lottery, in next 5 years they have become bankrupt, they have become drug addict, they have lost all their loved ones, they have gone cuckoo, they have become crazy. Most people who won the lottery in next 10 years and landed into filthy conditions, क्योंकि मुफ्त का मिला है. ये जो आदत है दिमाग के अंदर बैठ जाती है. A person with fear will not be able to live happily and perform well. A angry person takes wrong decision. Yeah, he takes out his anger in wrong way. He may kill someone, and his future will be jeopardized. And that is why to get rid of Vita Raga Bhaya Krodha, to get rid of Raga Bhaya and Krodha is actually to come out of these feelings for present, past and future. That is the meaning of it. That is another meaning we can understand from this sloka. And then how to get rid of it? फिर उसमें से निकलेंगे कैसे? चलो समझ लिया नहीं होना चाहिए, तो निकलेंगे कैसे? क्या फ्यूचर का भय नहीं रहेगा? क्या काम नहीं करना? क्या ज्यादा पैसे नहीं कमाना? इट्स नॉट लाइक दैट. एंड दैट इज वाई द नेक्स्ट सांसा इज पूता मद्भाव मागता बहवो ज्ञान तपसा. विद द ट्रू अंडरस्टैंडिंग इन अवर माइंड वी शुड डेवलप अबाउट द गॉड. क्या वॉट एवर आई हैव बीन गिवन इज बाय द गॉड. भगवान के भाव से मुझे मिला है, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसकी अंडरस्टैंड. मैं छोटा था, चल भी नहीं सकता था, पैदा हो गया, आई गॉट बर्थ, किसने संभाला?
दांत नहीं थे, जब दंत नहीं तो दूध दियो, दांत भी नहीं थे, पोटी कहां करना पता नहीं था, कपड़े कुछ मालूम नहीं था, कमाता नहीं था, किसी ने संभाला ना, कैसे भी तो बड़ा हुआ। चलो थोड़ा गरीबी में हुआ होगा, शायद थोड़ा कम खाना मिला होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, बड़ा हो गया ना, जिंदा रहा ना, किसी ने कुछ हेल्प की रहेगी ना, जब भी तो बड़ा हो गया, नहीं तो फेंक देते थे कचरा पेटी में, मर जाता था विद इन 2 hours। Somebody took care of you. So whatever you are having is given to you. तुम्हें दिया गया है, and what is given to you is nothing but prasad. Prasad. Prasad is a very big word. Prasad. Whatever you have received into the life is prasad. तो जिसने संभाला है वो आगे भी संभालेगा। फियर क्यों रखना? Why fear? फियर क्यों? पहले संभाला था, वो अभी भी संभालेगा, नहीं संभाल सकेगा तो बुला लेगा, उसमें क्या है? And hence I am not the owner and I have to leave this one day, and that is Atmavan. Sankhya Yoga is telling same thing. Sankhya Yoga में बोलते हैं अरे क्या है, and then people translate it in that way also, रोते रोते क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, ऐसे रोते रोते, रोते रोते नहीं है, प्यार से हंसते हंसते है। इट इज गिवन टू यू, सो यू हैव टू गिव इट बैक। नत्वम शोचित उमर हंसी, उसमें शोचित क्या करना है, दुखी क्या होना है? एंड दैट इज आत्मावान। द वर्ड आत्मावान हैज कम फ्रॉम देयर। व्हाट यू आर इज आत्मा। सो वॉट एवर इज अदर थिंग्स विथ यू इज गिवन टू यू, विच इंक्लूड योर बॉडी, योर बिलोंगिंग्स, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, योर नॉलेज। That is why Adi Shankaracharya has told everything. Na punyam, na papam, na saukyam, na dukkham. Everything, even feelings and even punya and papa is also not you. Na me dvesha rago, na me lobha moho. Feelings, even the body, everything is not yours. It is given to you. So you become Atmavan. That is Vitaraga Bhaya Krodha. It is not that the person is leaving the world, but he is leaving the feelings on himself because of this feeling. That is to be. राग भय और क्रोध होने चाहिए। वीत का मतलब चले नहीं गए हैं, उसको कहां यूज करना है, उसकी समझ, बहुवो ज्ञान तपसा, समझ आती। There is someone to take care of me. अनन्याश्चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्याम। पहले भी संभाला था, अभी भी संभालेंगे। योगक्षेम हमें संभालेगा। There is someone who loves me in all conditions, even if I am a very bad man. कभी कभी क्या है, बच्चे गलती कर देते हैं, या the kid will make a mistake. Now the kid knows that mama is going to find it. घर में कांच का गिलास था, दूध पीने के लिए भरा, हाथ में से चटक गया, गिलास गिर गया, दूध नीचे गिर गया, स्पिल हो गया और कांच फूट गया। अभी मम्मा डांटेगी वो गिलास कहाँ गया, मम्मा को पता चल जाएगा, मम्मा मारेगी 2 झापड़, क्यों उठाया था गिलास। होता है सर ना, बहुत बार होता है। मगर फिर क्या, मम्मा क्या खाना बंद कर देती है, जिंदगी भर तुमको अनाथ आश्रम में बेच देती है, हाथ पैर काट देती है? नहीं, 2 झापड़ मारेगी, फिर बोलेगी चल अभी आजा दूध पी ले, अभी दूध तो पीना ही था, दूसरे क्लास भी पी ले। ऐसा होता है। मम्मा बोलेगी ऐसा, अपिचेत्सु दुराचारो, कितना भी बुरा है मगर तू मेरा है, ऐसे मम्मा बोलती है। So that is how this feeling will go. मद्भाव, उसकी भाव पहचानने से जाएगा। अच्छा ठीक है, बट देन हाउ टू कंट्रोल। अभी भी कंट्रोल का तो क्वेश्चन रह ही गया ना, कि कंट्रोल कैसे करेंगे। हाउ टू कंट्रोल देम इन द टाइम व्हेन इट इज नेसेसरी, एंड हाउ नॉट टू लूज द कंट्रोल इज ए क्वेश्चन। एंड दैट इज व्हाई
मत मया, मत परमा, मेरे में एब्सॉर्ब हो जाओ. देयर इज अ स्टोरी. हाँ, व्हाट इज एब्सॉर्बिंग? एब्सॉर्बिंग क्या है? हम एब्सॉर्ब मतलब क्या होंगे? कल से नौकरी छोड़ देंगे. सो देयर इज अ नाइस स्टोरी वी ऑल नो अबाउट तुलसीदास. व्हाट इज एब्सॉर्प्शन? एब्सॉर्प्शन इज ए क्वालिटी. वेयर टू यूज इज इंपॉर्टेंट पार्ट. ये सब क्वालिटीज है. राग, भय एंड क्रोध इज ऑल्सो क्वालिटी. वेयर टू यूज इट. We all know the story of Tulsidas. Tulsidas was a young boy, young man rather, and he was loving his wife. Tulsidas की wife थी Ratnavali. What a beautiful name, isn't it? And same was the beauty of that girl, very beautiful. Ratnavali बहुत सुंदर थी. And Tulsidas got married. शादी हो गई. अभी बहुत प्यार है बीबी के ऊपर. रत्नावली, रत्नावली, कहीं भी जाएगा तो रत्नावली, कहीं कुछ भी देखेगा तो रत्नावली. इतना प्यार है, बहुत प्यार है उसको. वन डे रत्नावली टोल्ड, ओ आई हैव टू गो टू पियर जाऊंगी, माहेर. माहेर जाऊंगी. आई विल गो टू माय पेरेंट्स प्लेस फॉर वन नाइट एंड कम बैक टुमारो. आई वांट टू गो. तुलसीदास लव्स, नहीं, कैसे जाएगी, कैसे जाएगी तू? शी सेज आई विल गो एंड कम बैक tomorrow. Tulsidas cannot stay without her even with for a minute. Ratnavali तो चली गई अपने घर for one night to the parents' place. तुलसीदास ऐसे जैसे जल बिन मछली, a fish without a water. इतना तड़प रहा है, अरे रत्नावली कब आएगी, अरे ये तो कल आएगी, अरे इतना कौन राह देख सकता है. रत्नावली, रत्नावली. एब्सॉर्ब्ड, हम जैसे एब्सॉर्ब कहते हैं. एब्सॉर्प्शन इज ए स्टेटस ऑफ माइंड, इट्स ए सिचुएशन ऑफ माइंड. अभी क्या करना? उसके घर जाऊंगा. बेशरम होकर. जवाई है, एक दिन के लिए वाइफ गई है पियर, बेशरम होके उसके घर पे जाऊंगा. रत्नावली के बगैर नहीं रह सकता. ही कम्स आउट. इट्स ए वेरी हेवी रेन. बहुत बारिश हो रही है, नदी में पूर आया है. देयर इज ए फ्लड इन द रिवर. मगर रत्नावली को मिलना है मुझे. सो ही गोज आउट. देयर इज ए फ्लड इन द रिवर. यू कैंट पास, यू कैंट क्रॉस इट. तो देखता है वहां एक छोटी सी नाव लगी हुई है. देयर इज ए स्मॉल बोट. एनीथिंग, सी रत्नावली लव्ड मी सो मच, शी लेफ्ट ए बोट हियर सो दैट आई कैन क्रॉस द रिवर. He rides on the boat and goes across the river. Now that bungalow, that house is closed now. रात की हो गई है, सब सो गए हैं. So he is seeing a big rope coming down, ऊपर से नीचे तक ऐसे विंडो में से. He thinks, wow, see, Ratnavali loves me so much. She left a rope in the window so that I can go up to her bedroom. मैं जा सकता हूँ. In his mind, in his heart and mind and soul, everything, Ratnavali, absorbed. वो चढ़ जाता है, वो रस्सी पकड़ के विंडो में. रत्नावली को जगाता है. रत्नावली, आई एम हियर, आई कांट लिव विदाउट यू फॉर ए सिंगल सेकेंड. रत्नावली बोलती है, क्या हुआ? नहीं, तुमने मेरे लिए, यू केप्ट ए रोप नियर द विंडो फॉर द मी टू क्लाइंब अप. आई नेवर लेफ्ट ए रोप. No, I came up by the rope. Okay, let us see where is the rope. And now they see. Now when Ratnavali is showing, he is in his place. So Ratnavali बताती है, देखो ये तो सांप है. रात को जब बहुत बारिश हो रही थी तो मैंने बारी बंद कर दी, उसमें सांप फंस गया, अटक गया सांप. So you came up holding a dead snake. रस्सी नहीं है. नहीं, मगर तुमने मेरे लिए नाव छोड़ी थी. लेट अस गो देयर आल्सो. जाते हैं, देखते हैं एक डेड बॉडी फूल गया है. ब्लोटेड डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इट इज ब्लोटेड विद ऑल द गैसेस. वो तैर रहा था, उसके बोला ये तो नाव है. अरे मुझे लगा नाव है, नहीं, ये तो डेड बॉडी है. Absorbed कितने होते हैं? When you get absorbed, you do not think about anything other than the object which you are absorbed in. That is the meaning. And Ratnavali was a good wife.
दूसरी वाइफ रहेगी, बोलेगी अरे ये तो एकदम इसकी भूत की चोटी बिल्कुल अपने हाथ में है, कुछ डरने की जरूरत नहीं, हम जो बोलेंगे वो करेगा. बट रत्नावली वॉज नॉट ए वाइफ लाइक दैट. रत्नावली टोल्ड तुलसीदास, तुम्हें मेरे में जितना प्यार हो गया, मेरे में जितना इन्फेक्चुएशन हो गया है, उतना से में से तुम 10% भी अगर तुम भगवान में करते थे तो तुम्हारा नया प्यार हो जाता था. एंड तुलसीदास रियलाइज्ड the quality of absorption was already there. Point of the story is the quality of absorption was there, but where to use it? And then Tulsidas बड़े संत हो गए. अभी टाइम हो गया है 6:45. We will come again, complete this sloka, and then we will go to the next sloka. To understand more about Vitaraga Bhaya Krodha, and we will meet again next Wednesday, 6 to 6:45, same time here in the temple, Jai Durga temple. Till then, I wish everyone a good time, happy time. Get hydrated, keep hydrated. Lots of heat is there, and enjoy your time in the summer. Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Sri Guruve Namah.